बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, थोड़ी देर में पेश होगा एक देश एक चुनाव का बिल। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे ये बिल। बीजेपी के सभी सांसदों को व्हिप जारी किया गया है। सभी सांसद सदन में मौजूद रहेंगे। थोड़ी देर में बिल पेश किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लगातार प्रतिबद्धता जताई जाती रही है और ये कहा जाता रहा है कि थोड़े थोड़े दिनों में होने वाले इलेक्शन कहीं ना कहीं भारत की प्रकृति में जो प्रगति होती है, विकास होता है, उसमें बाधा बनते हैं और ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। लेकिन सरकार की संजीदगी के साथ साथ विपक्ष का विरोध भी लगातार सामने आ रहा है। क्या कुछ समीकरण बनेंगे वो देखना होगा, लेकिन थोड़ी देर में पेश होगा एक देश एक चुनाव बिल। और 1979 के टाइम भी, 1981 के टाइम भी, 1986 के टाइम भी, अलग अलग संविधान संशोधन भी और अन्य विधेयक के समय भी दलों के प्रमुख नेताओं को इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने की परंपरा पूर्व में रही है। तो मेरा आग्रह रहेगा कि जो दल के नेता हैं वो अपनी बात को संक्षिप्त में रखें। जब बिल विधेयक आएगा उस समय आप डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। With your permission, I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024, further to amend the Constitution of India। ये आइटम नंबर 18 में है और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा, ऑनरेबल स्पीकर सर, with your permission, I wish to move for leave to introduce the Union Territories Laws Amendment Bill 2024, further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991, and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूँ। थैंक यू सर। आपको मैं दूंगा। It's not proper and सेपरेट होगा, सेपरेट हो, डिस्कशन होगा सर। allot me the time for only one person leaders, okay, but a constitution amendment bill drastically changing the electoral process of our country, that used to be introduced separately, that used to be introduction has to be discussed, then take the other bill, otherwise it will be not fair as far as constitution amendment is concerned। माननीय सदस्यगण, मैंने आपको कहा है कि दोनों के विषय पर एक साथ बोलेंगे, लेकिन इंट्रोड्यूस भी अलग अलग होगा और पासिंग भी अलग अलग होगी। मतलब चर्चा करते समय मैंने जॉइंट बोला है कि दोनों विषय पर एक साथ चर्चा करें। बाकी मैंने पेश भी आपको बता दें, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया है वन नेशन वन इलेक्शन बिल। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, विपक्ष की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन लोकसभा में एक देश एक चुनाव का बिल पेश हो चुका है। एक देश एक चुनाव, इसको लेकर सरकार पहले भी Bill 2024. Mr. Speaker, sir, beyond the 7th schedule of the Constitution is the basic structure doctrine. And that basic structure doctrine spells out that there are certain features of the Indian Constitution which are beyond the amending power of this House also. One of the essential features is federalism and the structure of our democracy. And therefore, the bills which have been moved by the Honorable Minister under our constitutional scheme, that the tenures of the state legislatures can be made subject to the tenure of the national legislature. That is completely an antithesis of the constitutional scheme. There is absolutely no way under the Indian constitutional scheme where
the states are separate constituents and equal constituents, the term of the state legislatures can be made subject to the term of the national legislature. And my final point, Mr. Speaker, sir, India is a union of states. Article 1 of the Constitution states that India is a union of states and not vice versa. And so therefore, this excessive centralism which is sought to be brought into existence by this bill absolutely militates against the constitutional scheme in its essence, in its entirety, and in its very object. And therefore, Mr. Speaker, sir, I would once again like to urge this House that the introduction of the bill and the consideration of the bill, because of the basic structure doctrine enunciated by the Supreme Court in the Kesavanand Bharti case, is beyond the legislative competence of this House, and therefore this bill needs to be withdrawn immediately. Thank you, Mr. Speaker, sir. धर्मेंद्र यादव। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं इस संविधान के 129वें संशोधन अधिनियम के विरोध के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 ही दिन के अंदर संविधान की जो हमारी मूल भावना है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है, उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। मैं मनीष तिवारी जी से सहमत हूं और अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से कहना चाहता हूं, ये बिल पूरे देश के जो अलग अलग भेष भाषाएं, संस्कृति, क्षेत्र की जो मान्यताएं हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच विचार के मंथन अध्ययन करके ये संघीय ढांचा तैयार किया था, राज्यों का गठन भी किया था, संस्कृति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, परिस्थितियों और समय के हिसाब से। मैं नहीं समझता अध्यक्ष जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, उस समय के हमारे संविधान निर्माताओं से विद्वान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ज्यादा विद्वान इस सदन में अभी कोई नहीं बैठा, मुझे कहने में संकोच नहीं है। और ये संविधान की मूल भावना को खत्म करके कैसे तानाशाही के रास्ते निकाले जाएं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। आखिर मनीष तिवारी जी ने कहा, कहीं एक विधानसभा के चुनाव अगर कोई अविश्वास आता है, अगर बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या पूरे देश का चुनाव कराओगे? पूरे देश का चुनाव कराओगे? और ये लोग एक देश, एक संविधान, एक चुनाव की बात करते हैं। जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो, मौसम देख के तारीखें बदलते हो, वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं और आपके माध्यम से देश के जनमानस से कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही लाने के नित नए रास्ते लाते हैं। जो 8 विधानसभाओं का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, वो पूरे देश की लोकसभा और सारे प्रांतों की विधानसभाएं एक साथ कराने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर एक प्रांत के अंदर सरकार गिरती है तो क्या पूरे देश की लोकसभा के चुनाव कराओगे? क्या अगर लोकसभा के चुनाव के चक्कर में उस प्रांत के लोग क्यों सफर करेंगे? अरे चर्चा कर लेना, अरे कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है आपके पास। अध्यक्ष जी, सदन को थोड़ा सा सिस्टम में लाएं। अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम सबको भेजा है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, ये संविधान विरोधी, संघीय ढांचे विरोधी, बेसिक स्ट्रक्चर विरोधी कई केसों की चर्चा की मनीष तिवारी जी ने, मैं उनके साथ जोड़ते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी, इस नियत को वापस लो, ये अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्यगण, हम संसद के अंदर हर
विषय की अलग अलग प्रक्रिया होती है। जब राष्ट्रपति भाषण होता है, जब बोलने की प्रक्रिया अलग होती है। संविधान पर उसकी 75 वर्ष की चर्चा पर जब विषय अलग होता है। आप जिस बिल का विधेयक पर विरोध कर रहे हैं वो नियम 72 के तहत विरोध कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम संसद की मर्यादा, परंपरा, उसकी चर्चा को उच्च कोटि की बनाए। तो नियमों के तहत 72 में के परिप्रेक्ष्य में आप 1 मिनट प्लीज आप प्लीज मेरा ये आग्रह है, ऐसे नहीं बोलते बीच में। प्लीज बैठिए, ऐसे बीच में नहीं बोलते हैं। मैंने इसलिए आपसे कहा कि मैंने किसी को नहीं कहा कि मर्यादा बोली। मैंने कहा नियम 72 के तहत आप उस परिप्रेक्ष्य के अंदर बिल का विरोध करने का आपका अधिकार है, वह भी विधेयक की विधायी क्षमता, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के विषय पर। लेकिन विषय गंभीर है, इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों आगे बोल रहा हूँ, उस परिप्रेक्ष्य के अंदर वो अपनी बात को कहें, संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप अपनी बात कहें। मैं सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त अवसर दूंगा, पर जब बिल पर डिटेल चर्चा होगी तब आप जो भाषा बोल रहे हैं वह बोलने का अधिकार रहेगा। ठीक है, सब सहमत इस बात से? आपको देंगे, आप दोनों में से तय कर लो कौन बोलेंगे। हाँ, कल्याण आप दोनों तय कर लो पहले। नोटिस है। चलो मैं दोनों को 2-2 मिनट रख दूंगा। पहले कल्याण बनर्जी। Under our constitutional scheme, the basic structure of constitution is read in between the lines. This proposed bill hits the basic structure of the constitution itself. And if any bill, any act which hits the basic structure of the constitution, that is ultra vires. And it is ultra vires. Sir, proposed Article 83 sub-article 5 is just contrary to Article 83 sub-article 2. Just contrary. Either you keep 83.2 or you keep 83.5. Both cannot be kept. Both are inconsistent with each other. Then, sir, effect of proposed Article 82A sub-article 3 simply establishes that tenure of state legislative assembly simply depending upon the tenure of the House of the People. It is not a doctrine of pleasure. Doctrine of pleasure is under Article 311 of the Constitution. But a mandate which has been given by the people of the country that state assemblies tenure will be depending upon the doctrine of pleasure of this house. How it can be? This is inconsistent. It cannot be accepted. Sir, we must remember this. State government and the state legislative assembly are not subordinate to the central government or to the parliament itself. विपक्ष की ओर से इसका विरोध सदन में किया जा रहा है। रमेश चंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, विकास चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, सरकार की संजीदगी हमने लगातार देखी है, लेकिन विपक्ष का विरोध भी सामने आ चुका है। संविधान विरोधी, संघीय विरोधी इसको बताया जा रहा है। जरा पूरी प्रक्रिया समझाइएगा, किस प्रक्रिया से इस बिल को गुजरना होगा और विपक्ष के विरोध की वजह क्या नजर आती है?
देखिए, विपक्ष की तरफ से जो विरोध दर्ज कराया जा रहा है, तो सदन में आज विपक्ष अपना विरोध दर्ज करा रहा है, लेकिन जब ही ये एक देश एक चुनाव का मुद्दा सामने आया था, उस समय से ही विपक्ष इसको लेकर के अपना विरोध कर रहा है। और विपक्ष की तरफ से, और खासतौर से अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, तो उसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार बोलते हैं कि व्यवहारिक नहीं है, इसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता है। और लगभग पूरे विपक्ष की अगर बात की जाए तो सभी इसके विरोध में हैं। और लोगों का सीधा आरोप है, यानी विपक्ष का ये सीधा आरोप है कि सरकार जो है वो तानाशाही तरीके से काम करना चाहती है। कहा कि इस देश में एक देश एक चुनाव नहीं चल सकता है। तो विपक्ष का विरोध काफी लंबे समय से, जब इसकी चर्चा शुरू हुई थी तभी से इसका विरोध शुरू हो गया था। और आज सदन में चूंकि बिल पेश हो रहा है, तो निश्चित पहले से ये तय था कि विपक्ष अपना विरोध दर्ज कराएगा। जहां तक रहा सवाल कि अगर ये पास कैसे होगा, क्योंकि ये आसान काम नहीं होगा सरकार के लिए, क्योंकि इसमें संविधान संशोधन भी होने हैं, 2/3 बहुमत भी चाहिए और 50% राज्यों से इस पर मुहर भी लगवानी होगी। तो इसलिए सरकार ने पहले ही इस बात के संकेत कर दिए थे कि अगर विपक्ष चाहेगा, विपक्ष की तरफ से मांग अगर की जाएगी, तो उन्हें किसी संयुक्त संसदीय समिति या जेपीसी को देने में कोई गुरेज नहीं होगा, इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि ये सहमति से और सर्वसम्मति से ये बिल पास हो। तो सरकार की अगर बात करें तो सरकार की मजबूरी भी है सर्वसम्मति और सहमति की बात करना, क्योंकि 2/3 का बहुमत उनके पास नहीं है और इसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए होगा और लगभग 6 से लेकर 12 तक संविधान संशोधन करने पड़ सकते हैं। तो बिल्कुल, तो आसान अब काम देखना नहीं है होगा और विकास विपक्ष की का विरोध शुरू हो गया है। कितनी मुश्किल राह रहेगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।